students, this is our second class of marketing and sales of unit number 1 for class 10th. Before that, if you are not subscribing the channel of St. Xavier, so please subscribe it now, otherwise you will not get the notification of all the subjects which is related to your class. So we start with the topic of the concept of exchange. Firstly, we understand the meaning of exchange. Exchange is the thing when we are exchanging anything with the help of money. Nowadays, exchanging medium is known as money, but before that, when barter system is going on, so we exchange our commodity with the another commodity. But nowadays, what's going on? We exchange the commodity with the help of money. So money is a medium of exchange. Two concepts are given. One is given by Lamb, one is given by Kotler. So see this, in this sense, two different thinking given by the two different researcher. Next thing, necessary condition for exchange. There are 5 conditions. It is mandatory when we are going for the exchange. So there is at least 2 parties, something of values, communication and delivery, freedom to accept and reject, desire to deal with the other party. At least 2 party means 2 party होनी चाहिए कम से कम. समथिंग वैल्यू, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी वैल्यू हो. कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी, कम्युनिकेट कर सकें हम एक दूसरे से और डिलीवर कर सकें. फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, हमारे पास आज़ादी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की. डिज़ायर टू डील विद द अदर पार्टी, हमारे पास डिज़ायर होना चाहिए कि हम अदर पार्टी से उस चीज़ को एक्सचेंज कर लें. So see the next topic. However, some 3 points are also given. Exchange may not be take place even if condition are not met. जब condition नहीं मिलती है तो exchange possible नहीं होता है. An agreement must be reached. Agreement होना चाहिए दोनों के बीच में. Marketing occurs even if exchange does not take place. जब exchange नहीं हो रहा है तब भी वहाँ पे marketing होनी चाहिए. Marketing का मतलब different sense में आता है. Marketing में आपका buying, selling, कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन देना, कस्टमर्स से आपको रिलेशनशिप बनाना, दीज ऑल काइंड्स ऑफ नीड्स विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द मार्केटिंग. बट एक्सचेंज इज़ अ डिफरेंट थिंग. एक्सचेंज ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हो तो वहाँ पे चीज़ें एक्सचेंज ही हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर गोइंग फॉर एनी परचेजिंग फॉर एनी गुड्स, इफ़ वी डिड नॉट लाइक, अगर हम उसको पसंद नहीं करते थे तो हमने उसको नहीं खरीदा. वी डिड नॉट परचेज. Why? Because we are having lots of options in the market. So when we are satisfied with the product, so we have to exchange with the money. Otherwise, we left the material and go to the next shop. See the next one. There are marketing management philosophies given. There are 4 philosophies: production concept, selling concept, marketing concept, social marketing concept. Production concept इज़ द कॉन्सेप्ट विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन, जो हमारे फोकस करता है इंडस्ट्रीज़ और फर्म के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर. नेक्स्ट वन इज़ सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली बेस्ड ऑन द सेलिंग टेक्निक्स विच इज़ यूज फॉर द सेल्स और इंक्रीज़ द प्रॉफिट ऑफ द सेल. जो ऐसी टेक्निक्स जो हम सेल के बढ़ाने के लिए करते हैं वो हमारे सेलिंग कॉन्सेप्ट कहलाते हैं. नेक्स्ट वन, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो होता है जब भी हम कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, वी हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स. बिहेवियर विद द कस्टमर ऑल्सो, हम यहाँ पे पर्सन से, जो भी कंज्यूमर से रिलेशनशिप बना रहे हैं उसके बिहेवियर को मैटर करते हैं, उसकी वांट्स को फुलफ़िल करते हैं, उसकी वांट्स को से वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. दीज ऑल द थिंग्स which are benefited for the social marketing concept. Next one is the marketing concept orientation. In this section, marketing concept और orientation means the marketing का concept क्या है. It is an idea of economic और the social justification. Means इसमें हम marketing कैसे चलती है, एक तो social कैसे चलेगी जब consumer होगा, और economic marketing किस लिए होती है, for the economic profit, मतलब पैसा आना चाहिए. So these 2 things keep it in your mind at the time of marketing concept. And rest of the part, we have to provide the goods, those are satisfy the needs of the customer also.
Next one is marketing concept. Some 3 points also given. First is focusing on customer wants, needs. It is already mentioned. जब भी हम कोई भी चीज़ फोकस करते हैं, बेसिकली हम फोकस करते हैं कंज्यूमर्स की नीड्स फुलफिल हो. व्हेन कंज्यूमर नीड्स फुलफिल, सो कंज्यूमर ऑल्सो सेटिस्फाइड. नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर वांट्स. हम ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी एक्टिविटी को करने की कोशिश करते हैं जिससे हम कस्टमर की वांट्स को फुलफिल कर पाएँ. अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल लॉन्ग टर्म गोल. लॉन्ग टर्म गोल को भी ऑर्गेनाइजेशन के फुलफिल करते हैं. लॉन्ग टर्म गोल कैसे होगा? जब कस्टमर सेटिस्फाई, व्हेन कस्टमर सेटिस्फाई विद अवर वन प्रोडक्ट, सो ही इज़ डिमांडिंग फॉर द अदर प्रोडक्ट, मीन्स फॉर दैट प्रोडक्ट क्वांटिटी एक्सटेंडेड, मीन्स क्वांटिटी बढ़ा देगा और हर बार वो उसी प्रोडक्ट की डिमांड करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज अचीविंग अ मार्केटिंग ओरिएंटेशन. अचीव करना है मार्केटिंग का ओरिएंटेशन. सो सम पॉइंट्स आर गिवन. फर्स्ट इज ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स एंड द कॉम्पिटिटर एंड द मार्केट. पहले हमको इन्फॉर्मेशन कस्टमर की डिमांड्स को पता करना चाहिए, मार्केट में कौन कौन हमारा कंपटीटर है और मार्केट किस चीज़ की बेनिफिटेड है. नेक्स्ट वन इज एग्जामिन द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टोटल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव्स. बिजनेस के बारे में भी हमको टोटल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. डिटरमाइन हाउ टू डिलीवर सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज़. हमको डिलीवर करना है सुपीरियर के कस्टमर वैल्यूज़ को, तो हम कैसे माइंड में रखेंगे. इम्प्लीमेंट द एक्शन टू प्रोवाइड वैल्यूज़ टू कस्टमर्स. वो काम हम करेंगे जो कस्टमर की वैल्यूज़ को ध्यान में रख के किया जाए. नेक्स्ट है सोसाइटियल मार्केटिंग ओरिएंटेशन. सोसाइटियल मार्केटिंग ओरिएंटेशन टोटली बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म नीड्स, long term fulfillment of the organization with the help of customer satisfaction. Clear? So it is already given here also. Marketing that preserve, enhance and the individual and society long term best interest. It is totally based on the long term. हम तभी कर पाएंगे जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे. जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा, at that time they purchase our goods again and again. That's why it is mandatory for the social marketing orientation. Some points also given. Less toxic product, लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए. मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो लंबे समय तक चलें. प्रोडक्ट विद रीयूजेबल और रिसाइकिल मटेरियल. ऐसे मटेरियल का होना चाहिए जिसको हम रीयूज़ कर पाएँ या उसको रिसाइकिल कर पाएँ. नेक्स्ट वन इज़ रिव्यू फॉर द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज. देयर आर 4 फिलोसफीज: प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग एंड सोसाइटल. आई वॉज टेलिंग यू in the previous pages. So focus on that. Production basically what can be make or do best. उसको कौन बना सकता है और कितना अच्छे से बना सकते हैं. सेल्स, हाउ कैन बी सेल, उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं. मार्केटिंग, व्हाट डू कस्टमर नीड्स एंड वांट. मार्केटिंग तो तभी करेंगे जब हम कस्टमर की डिमांड्स को पता कर पाएंगे. सोसाइटियल, व्हाट सोसाइटियल ऑलवेज बेनिफिटेड for the organization, but it is already keep it in your mind that customer satisfaction is mandatory for the societal relationship. Next one is one difference between given sales and marketing orientation. You have seen this 5 points: organizational focus, what type of business organization, to whom the product is directed, firm primary goals and ways to achieve the goal. Clear? So see this. Next one is marketing process. Marketing process totally based on all the sectors. For example, sales, production, buying, selling, trading, transportation. These all the process which is used in the marketing. So some points are given. First is marketing process include all the marketing role and activity of the organization. मतलब मार्केटिंग में वो सारे रोल्स प्ले होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को बेस्ड ऑन होते हैं. नेक्स्ट थिंग गिवन, एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी. हम लोग अपॉर्चुनिटी पता करते हैं किस प्रोडक्ट से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं या कौन सा हम ऐसा रोल प्ले करें जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट, मार्केट का टारगेट हमको सिलेक्ट करना है. 4 P's statement is there. 4 P's means this is a market presentation, means product, price, promotion and place. These 4 things are benefited for the market strategy. Next one is managing the marketing effect. Managing the marketing effect, there are SWOT analysis. SWOT analysis totally based on the strength of the product, weakness of the product, opportunity to make the profit of the for the product and the threat. कमी क्या है उसमें, that is the threat for the product. Next one is define a firm business. फर्म का बिजनेस हम कैसे डिफाइन करेंगे. इट इज़ टोटली यूज्ड बाय द कस्टमर्स बेनिफिट इंस्टेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फर्म का बिजनेस का डेफिनेशन अगर हम दें तो फर्म बेसिकली हमारे कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करने के बाद ही चल सकती है, ना कि गुड्स और सर्विसेज से.
जब हम उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं सो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. सो इट इज़ द मेन फैक्टर ऑफ बिजनेस इंक्रीजिंग. इंश्योर अ कस्टमर फोकस, इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, अवेयरनेस चेंजिंग द कस्टमर प्रेफरेंसेस. हो सकता है कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस बदल गए हों तो उस पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए. वाई स्टडी मार्केटिंग. मार्केटिंग हम क्यों पढ़ते हैं? देर आर 4 पॉइंट्स आर गिवन. प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द सोसाइटी. ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी का. वाइटल बिजनेस सर्वाइवल, प्रॉफिट बनाता है, ग्रोथ बढ़ाता है बिजनेस की. कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. इफेक्ट योर एवरीडे लाइफ, ये हमारी एवरीडे लाइफ को भी इफेक्ट करता है. वाई स्टडी मार्केटिंग, देर आर 4 or 5 वाइटल पॉइंट्स गिवन. One is wants and satisfaction. It's assess the wants and satisfaction of the customer. Design the product offering. जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका ऑफरिंग का जो डिज़ाइन है वो भी मैनेज करना पड़ता है. प्राइस और प्राइसिंग पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ती हैं. वी हैव टू डेवलप डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज. वी हैव टू मेक communicate with the present and potential customers. These some points are already affected in the why study marketing. Trends of marketing. There are 4 points are given. Trends of marketing, connecting technologies. There are computer technology, information technology, transportation. So here connection with the customer. हम इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्शन कर सकते हैं कस्टमर्स से. मार्केटिंग पार्टनर्स को भी बना सकते हैं. नेक्स्ट वर्ल्ड अराउंड, हम वर्ल्ड में भी, पूरे वर्ल्ड में भी काम कर सकते हैं. Thank you for listening me.